اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جن اور انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے. انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے, کیا اجازت ہے کیا ممنوع ہے, وہ اس کتاب قرآن مجید میں لکھا ہے. اللہ اکبر, اللہ از دا گریٹسٹ, اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ جانے آپ میں سے عمل میں سب سے بہترین کون ہے. اگر آپ ایک دانہ ڈالیں گے اللہ کے راہ میں, اللہ آپ کو 7 بوٹے دے گا, ہر بوٹے پہ 100 دانہ. سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11, یہ اللہ میری ساری دنیا کی دولت لے لے ان ایکسچینج فار تمہارے قریب جنت میں ایک گھر. اللہ کے رسول کی سیرت پڑھیں گے, صحابہ کی سیرت پڑھیں گے, یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. رول ماڈل کہ اللہ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا. یہ زندگی جو ہم جی رہے اس دنیا میں ہمارے لیے امتحان ہے, اور ہر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرکھیں گے. تو یہ زندگی ہمارے لیے امتحان ہے. یہ زندگی جو ہم جی رہے اس دنیا میں ہمارے لیے امتحان ہے, اور ہر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرکھیں گے, ٹیسٹ کریں گے کہ ہم میں سے کون اچھا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 71 میں کہ کچھ لوگوں کو ہم نے نوازا ہے نعمت سے, تحفے سے زیادہ, کچھ لوگ کو ہم نے نوازا ہے نعمت سے تحفے سے کم. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 165 میں کہ کچھ لوگ کو ہم درجہ بلند کرتے ہیں اور ہم ان کو اعلیٰ امتحان میں ہم ان کو پرکھتے ہیں, درجہ اونچا کرتے ہیں اور پھر پرکھتے ہیں کہ آپ میں سے اچھا کون ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال میں سورہ نمبر 8 آیت نمبر 28 میں کہ آپ کی بیویاں اور آپ کے بچے آپ کے لیے امتحان ہے, آپ کے لیے ٹیسٹ ہے, آپ کے لیے ٹرائل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ منافقون میں سورہ نمبر 63 آیت نمبر 9 میں کہ آپ کے بیویاں اور آپ کے بچے امتحان ہیں, اور سنبھل کے رہنا, آپ اللہ کی عبادت سے دور نہ ہو, اللہ کی ذکر, اللہ کو یاد کرنے سے دور نہ ہٹنا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ تغابن میں سورہ نمبر 64 آیت نمبر 14 میں آپ کے بیویوں اور بچوں میں سے ہو سکتا ہے کچھ آپ کے دشمن ہیں. یہ سارے قرآن مجید کی آیت ہے, اور اس کی کئی مثال ہے قرآن مجید میں. یہ سب جو نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے, جب بھی آپ کے پاس نعمت آتی ہے, whenever you get some reward, یہ نعمت 2 چیز کی وجہ سے ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے انعام ہے, آپ کے لیے ریوارڈ ہے, ہو سکتا ہے آپ کے لیے فتنہ ہے. فتنہ مطلب ٹرائل. اردو میں فتنہ کی معنی اور ہوتی ہے, عربی میں اور ہوتی ہے. عربی میں فتنہ کی معنی ہوتی ہے امتحان. تو جب بھی آپ کے اوپر نعمت اللہ تعالیٰ برساتا ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے انعام ہو سکتا ہے آپ کے لیے امتحان ہو, اور جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا ریوارڈ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں ہمیں راہ نجات دکھاتے, پاتھ فار سیلویشن, جنت میں جانے کا راستہ. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ العصر میں سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 2 3
वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलु सॉलिहाती व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं असर की, वक्त की। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। मैन इज इन लॉस। इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलु सॉलिहाती व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। सिर्फ वो लोग खसारे में नहीं हैं। और चार चीज का जिक्र आता है, इल्ला लज़ीना आमनू, जिसके पास ईमान है, वो अमल सॉलिहात, जिसके पास अमल सॉलिहात है, राइचियस डीड है, अच्छे अमाल है, वतवासौ बिल हक़, लोगों को हक की तरफ बुलाता है, वतवासौ बिस्सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाता है। तो अल्लाह ताला इस सूरे में, सूरे अल असर में फरमाते हैं कि इंसान खसारे में है, वक्त की कसम खा रहे हैं। और इमाम शाफी रहमुल्लाह वो फरमाते हैं कि अगर ये सूरे अल असर सिर्फ ये एक वाहिद सूरा इंसानियत पे नाजिल होता था, ये इंसान के हिदायत के लिए काफी होता है। इमाम शाफी रहमुल्लाह फरमाते हैं अगर ये वाहिद सूरा जिसके 3 आयतें हैं, पूरे कुरान मजीद में सेकंड शॉर्टेस्ट सूरा, छोटे सूरों में से नंबर 2 पे आता है। सूरह कौसर सबसे छोटा, अल असर दूसरे नंबर पे आता है। इतना छोटा सूरा अगर नाजिल होता था सिर्फ ये सूरा, तो इंसानियत के लिए काफी हो जाता। क्यों? आप कुरान मजीद में कई जगह पे पढ़ेंगे कि जन्नत में जाने के लिए ईमान, अमल सॉलिहात, 2 चीज, ईमान, अमल सॉलिहात। कई जगह लिखा है कुरान मजीद में, ईमान, अमल सॉलिहात। ईमान होना चाहिए, अच्छे अमल होना चाहिए। लेकिन इस सूरे में 4 चीज का जिक्र है। अल्लाह ताला क्या करते हैं कि अमल सॉलिहात के अंदर 2 चीज का खुसूसन जिक्र करते हैं। पहले नंबर पे ईमान, दूसरे नंबर पे अमल सॉलिहात। अमल सॉलिहात में से 2 चीज का खुसूसन जिक्र करते, वतवासौ बिल हक़, वतवासौ बिस सब्र। हक की तरफ लोगों को बुलाओ और लोगों को सब्र की तरफ बुलाओ। इस सूरे में अमल सॉलिहात में से 2 अमल का खुसूसन जिक्र करते। अगर इन चारों में से आपके पास एक भी मिसिंग है, एक भी मौजूद नहीं है, तो सूरे असर के हिसाब से आप जन्नत में नहीं जाएंगे। आप बहुत अच्छे मुसलमान होंगे, 5 टाइम नमाजी होंगे, तौहीद पे होंगे, आप हर साल ज़कात देते होंगे, आप हर रमजान पूरा रोजा रखते होंगे, आप हज किए होंगे। लेकिन अगर आप वतवासौ बिल हक़, लोगों के हक की तरफ नहीं बुलाएंगे, दावत नहीं देंगे, तो सूरे अल असर के हिसाब से आप जन्नत में नहीं जाएंगे। अगर अल्लाह ताला आपको माफ करना चाहता है और जन्नत में जानना चाहता है, वो अलग बात है, वो अल्लाह का इख्तियार है। अल्लाह कोई भी गुनाह माफ कर सकता है शिर्क के अलावा। लेकिन आमतौर पे गाइडलाइन हमें दी गई है कुरान मजीद में सूरह असर में कि जन्नत में जाने के लिए 4 चीजें, ईमान, अमल सॉलिहात, वतवासौ बिल हक़, इस्लाह करना और दावा करना, वतवासौ बिस सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। और इसका एम्फेसिस, इसकी तफसीर कुरान मजीद में है सूरह अल इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में। अल्लाह ताला फरमाते कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ए मुसलमानों, आप सारी दुनिया में सबसे बेहतरीन कौम है। इस आयत में सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में अल्लाह ताला फरमाते कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ए मुसलमानों, आप दुनिया में सबसे बेहतरीन कौम है। जब भी आपको कोई इज्जत मिलती है तो लाजिम है इज्जत के साथ जिम्मेदारी होना जरूरी है। मिसाल के तौर पे एक स्कूल में अगर कोई प्रिंसिपल है
تو प्रिंसिपल की इज्जत टीचर से ज्यादा है, लेकिन साथ साथ प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल की जिम्मेदारी टीचर से ज्यादा है। टीचर की इज्जत एक क्लर्क से ज्यादा है, साथ में टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर की जिम्मेदारी भी क्लर्क से ज्यादा है। आपको कभी भी इज्जत नहीं मिलेगी जिम्मेदारी के बिना, हर इज्जत के साथ जिम्मेदारी जरूरी है। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम मुसलमानों को इतनी बड़ी इज्जत दे रहे, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ए मुसलमानों आप सारी दुनिया में सबसे बेहतरीन उम्मत है। क्या हमारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं? इसका जवाब इसी आयत में अल्लाह ताला फरमाते, तअमुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, क्योंकि आप लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं और अल्लाह में मानते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम मुसलमानों को कह रहे हैं हम सबसे बेहतरीन उम्मत है। क्यों? हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं, गैर मुसलमानों को इस्लाम की दावत देते हैं और लोगों को बुराई से रोकते हैं और अल्लाह में मानते हैं। अगर हम लोगों को अच्छाई की तरफ नहीं बुलाएंगे, गैर मुसलमान को दावत नहीं देंगे, बुरे काम से नहीं रोकेंगे, हम मुसलमान कहलाने के लायक नहीं हैं, हम खैरा उम्मा कहलाने के लायक नहीं हैं। हमें ये अल्लाह ने ऑनर, इज्जत दी है कि हम सबसे बेहतरीन उम्मा है, क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। अगर हम लोगों को अच्छाई की तरफ नहीं बुलाएंगे, अल्लाह का पैगाम लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, गैर मुसलमानों तक, हमें मुसलमान बोलने का हक नहीं है, हमें अपने आप को खैरा उम्मा बोलने का हक नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हदीस में, सही हदीस तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2517, 2517, एक साहबा अल्लाह के रसूल के पास आके कहते हैं कि मैं मेरे ऊंट को बांधूं और फिर अल्लाह पे तवक्कुल करूं, क्या ऊंट को छोड़ दूं और फिर अल्लाह पे तवक्कुल करूं? अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ऊंट को बांधो और अल्लाह पे तवक्कुल करो, tie your camel and then trust in God। ये मिलती है हमारे हमको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए सही हदीस में, तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2517, ऊंट को बांधो और फिर अल्लाह पे तवक्कुल करो। मतलब अल्लाह पे तवक्कुल करो लेकिन ऊंट बांधना जरूरी है। उसका मतलब अल्लाह ताला फरमा रहे, आखिरी नबी के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए में हिदायत दे रहे कि अल्लाह पे तवक्कुल करो, ऊंट को बांधो मतलब प्लानिंग करो, ऐसा इन्हें हवा में छोड़ दो। तो हमें प्लानिंग करना जरूरी है, गोल बनाना जरूरी है। अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे, हम गोल पे तवज्जो नहीं देंगे, तो हम आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिदायत पे अमल नहीं करते। गोल सेटिंग बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग मैनेजमेंट के कुछ कोर्सेज किए हैं वो जानते होंगे, गोल सेटिंग का एक्रोनियम है स्मार्ट, SMART। जो लोग मैनेजमेंट के कोर्सेज किए होंगे उसे कहते गोल सेटिंग स्मार्ट, SMART। लेकिन मैं खुद एक नया एक्रोनिम मैं मेरे मुसलमान भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, आप इस्तेमाल कीजिए एक्रोनियम इस्लामिक, ISLAMIC।
आए है इस्लामिक, मतलब आप जो भी गोल आपका है, आप देखिए क्या वो कुरान और हदीस से मिलता है। जो भी गोल आप सेटिंग कर रहे हैं वो मैच होना चाहिए कुरान के तालीमात से और सही हदीस की तालीमात से। जो तालीम अल्लाह ताला में देते हैं कुरान में, या आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते सही हदीस में, उससे मैच होना चाहिए। अगर आपका गोल उससे मैच नहीं हो रहा है तो ये गोल आपके लिए कोई फायदे का नहीं है।